Bismillahirrahmanirrahim. पहले तो I would like to welcome you and be very grateful to you for coming and taking out time for this very important press conference. The first thing is कि आप सबको हम सबको इस मुबारकबाद हो कि इस जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर है उसका जो सा है आगाज़ हो चुका है. एंड वाई बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर द प्रोवाइडिंग द requisite synergy and jointness for military operations. इसके ऊपर आप लोग मीडिया में काफ़ी बहस कर चुके हैं एंड वी अंडरस्टैंड कि वॉरफेयर का जो करेक्टर चेंज हुआ है उसके अंदर जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस हैं. So it is not more only land, sea and air. It is space, it is cyber, it is informational domain, it is the intelligence operations and multiple domains जिसके अंदर अभी जंग लड़ी जाती है. The wars have become violent, the wars have become short and intense. तो उसमें एफिशिएंसी हासिल करने के लिए, एफिकेसी हासिल करने के लिए और इकोनॉमी ऑफ एफर्ट हासिल करने के लिए ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का हेडक्वार्टर है, इट वाज ए लॉन्ग अवेटेड एसेंशियल रिक्वायरमेंट. एंड इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान. इस वक्त मुल्क दर्जनों से ज़्यादा ममालिक हैं दुनिया में. इट्स अप टू ऑलमोस्ट लाइक 70 कंट्रीज जहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस का जो सिनर्जेटिक हेडक्वार्टर्स हैं दे आर अवेलेबल. सो दिस इज़ ए समथिंग दैट जिसका जो आज एक पार्लियामेंट की हिदायत पे और ऑर्डर्स पे जिसका आगाज़ हुआ है. So this is again a monumental and great day for the national security of Pakistan. However, जो बुनियादी मकसद आज बातचीत करने का है वो ये है कि we need to understand a creeping national security threat that is internal. And that threat का जो महवर है, जो उसका आप कह सकते हैं जहाँ से एमिनेट होती है, that is one delusional mindset and a delusional person जो कि कैप्टिव है अपनी ज़ात का, जिसके नज़दीक उसकी ज़ात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं. उसकी ज़ात, उसकी ख्वाहिशात और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं. एंड why it may seem to you a bit strange coming from me this, because that person and the narrative that he is pushing, it has become a national security threat. अब सियासत ख़त्म हो चुकी है. अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कम क्लियर, बगैर किसी इबाहम के, बगैर किसी डाउट के, we need to come clear and say what needs to be said. And we need to understand that how this narrative is working, why it is working, and also, unfortunately, it is working in deep collusion with external actors. To understand that, first, I'll set the stage by repeating something that we have been repeating, the armed forces have been saying again and again, that we are the armed forces of Pakistan. We don't represent एनी एथनिसिटी. हम किसी इलाकियत को, किसी लसानियत को, किसी मजहबी झुकाव को और किसी सियासी सोच को या मकतबा फ़िक्र को रिप्रेजेंट नहीं करते. हमें पाकिस्तान के हर इलाके के, हर मज़हब के, हर मसलक के, हर ज़बान के, हर सियासी सोच के लोग मौजूद होते हैं. बट वी पुट दैट ऑल असाइड वंस वी वियर दिस यूनिफॉर्म. That is our pride, that is our honor. We strive, we die on daily basis, not for some zaban, some alaka, some siyasi soch. We strive and die on daily basis for the people of Pakistan, for the integrity of Pakistan. And that we say very clearly. And we also don't come from the elite of Pakistan. We come from the middle classes, lower middle classes, the poor classes. We don't strive, we are not pursuing the agenda of हम किसी के political actor का, किसी class का, किसी elitism का agenda लेके नहीं चलते. This is your armed forces. We are absolutely clear of the character of the armed forces of Pakistan, starting from soldier up to its field marshal. This is the way we are, this is the way we will. अगर कोई अपनी ज़ात के लिए, अपने delusional mindset के लिए, अपनी नासिस सोच के लिए इस armed forces को और इसकी leadership attack करता है, then we will also come bare knuckle. There should be no doubt on that. और that's why we request again and again कि आपकी सियासत होगी. हम रिस्पेक्ट करते हैं तमाम सियासी पार्टीज़ को, तमाम सियासी शख्सियात को, लेकिन आप अपनी सियासत को बराए मेहरबानी पाकिस्तान की अफवाज से दूर रखें.
हमें इसमें ना घसीटे. वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ योर पॉलिटिक्स. आप अपनी सियासत खुद करें, जो करना है करें, लेकिन इस फौज को इससे दूर रखें. इसलिए हमें कुछ चीज़ें बड़ी कम्युनिकेट क्लियरली करने की ज़रूरत है. पहली बात तो ये है कि अफवाज पाकिस्तान और इसके अवाम के दरमियान किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो दरार डाले. वाई? बिकॉज दिस इज योर ओनली आर्म्ड फोर्सेस दैट यू हैव. यू डोंट हैव ए चॉइस. दिस कंट्री डजंट हैव एनी अदर आर्म्ड फोर्सेस. ये आपकी अफवाज किसी को या इस फौज के बारे में किसी को राय हो सकती है, किसी के बारे में कोई ऑब्जर्वेशन हो सकती है, एंड इफ दैट इज ए कंस्ट्रक्टिव ऑब्जर्वेशन, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, यू आर मोर देन मोस्ट वेलकम. बट दैट डजंट अलाउ यू कि आप पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ भड़काएं और उनके दरमियान गैप डालने की कोशिश करें. क्योंकि यही आपकी एक फ़ौज है. यही फ़ौज है जो कि हिंदुस्तान की जो हिंदुत्ववाद सोच है, जो उनकी हेजेमोनिक डिज़ाइंस हैं, उसके और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान यही फ़ौज है जो ढाल के तौर पे खड़ी है. यही फ़ौज है जो कि ख्वारजों के, ख्वारजीन के और दहशत गर्दों के और जो अफगानिस्तान से बेस ऑफ ऑपरेशन को इस्तेमाल करके हिंदुस्तान आप पे फितना अल ख्वारिज, फितना अल हिंदुस्तान और दहशत गर्दी है, उसके और अवाम के दरमियान कौन सी फ़ौज खड़ी है? यही फ़ौज खड़ी है. एंड वी ऑल्सो नो फॉर ए फैक्ट कि हर मुल्क में एक फ़ौज होती है. मशहूर जुमला है ना, देयर विल ऑलवेज बी एन आर्मी इन ए कंट्री, इट इज़ नॉट योर्स, इट विल बी ऑफ योर एनिमी. यही कहा जाता है ना. तो जो इस अपनी फ़ौज के ऊपर हमला करता है, उसकी लीडरशिप पे हमला करता है, तो वह क्या किसी और की फ़ौज के लिए स्पेस क्रिएट करना चाह रहा है? व्हाट्स हिज डिज़ाइन? व्हाई इज ही ट्राइंग टू डू दैट? सो हमें भी क्लियर है, पाकिस्तान के अवाम को भी क्लियर है कि ये नहीं हो सकता. बिकॉज दे अंडरस्टैंड, वी अंडरस्टैंड, yes, you can fool some of the people all the time. You may also fool all of the people some of the time. But you can never fool all the people all the time. So that's where we stand now.